So in previous class, we have seen uh, third normal form, I guess. So let me repeat again that discussion on third normal form. Uh, so I have defined the third normal form like that. First, a relation should be in 2NF. Then there should be no transitive dependency. This is the very simplest definition of third normal form. Okay, so you need to check two conditions when you are checking that a given relation is in third NF or not. First check it, if it is in second NF, yes, then check another condition, that if there is any transitive dependency. If there is no transitive dependency, then your relation is in definitely in 3NF. If there is any transitive dependency, then your relation is not in 3NF. You should remember. Now, what is the meaning of transitive dependency? Transitive dependency means there should be no functional dependency among non-prime attributes. Or you might have this kind of function dependency: A determines B, B determines C, determines A determines C. So it happens all. So you will see this case when there is some transitive dependency, or you can say that there is a function dependency between two non-prime attributes. So obviously, to identify which attribute is prime, which attribute is not prime, you need to know what is the key. Okay, so it is always very important to find out the key in a relation before doing normalization. Okay, so जब भी आप normalization start करते हैं तो normalization start करने से पहले find out the key in the relation, or actually you need to find out the set of function dependencies. Actually key भी अगर आप identify नहीं करते हैं, that's fine, but you should know what are the set of function dependencies your relation is actually satisfying. Okay, so with that information you will be able to find out whether your relation is in 3NF or not. Okay, so we have seen one example. So in that case, in that example, what I have taken, that suppose professor and course is the key in this relation, and we have some other attributes like room number, in which that room is in room number is the number of the room where the course that is taught by a professor is being run. Okay, or then room capacity is there. So if each room is having a capacity, so that is room capacity, and then enrollment limit. Okay, now here we are assuming that room number is unique. So each room number having its own capacity, and also it have some impact on enrollment limit. Okay, however, you should be aware of that it is not always the room capacity that determines enrollment limit. Actually, sometimes regulation of university also work there, and it also depends on the teacher also, the teacher or professor that is going to teach a course. Okay, but for that example we are assuming that room number functionally determines room capacity and also functionally determines enrollment limit. So now you might have seen that since professor and course is the key, so it will functionally determine all the attributes. Okay, like I have written there, and then room number and room capacity are associated with a function dependency. What is that? Room number functionally determines room capacity. Similarly, room number also functionally determines enrollment limit. So you can see now these pair of attribute is functionally determining room number, and room number is determining room capacity. So now you have one transitive dependency. Similarly, another transitive dependency is also there. Professor course determines room number, and room number determines enrollment limit. Okay, so this is one way. आप देख सकते हैं कि आपका रिलेशन 3NF में है नहीं है. 1 minute. Okay, so what you can do now, either you can identify a set of transitive dependency like that, or you can also see that since professor and course is the key, so professor and course both are the prime attributes and rest are the non-prime attribute. And now just you can look into the set of FDs that you are having, and find out that whether is there any FD where both the sides are some
non-prime attribute. Okay, so you can see that room number is non-prime attribute, room capacity is non-prime attribute. Similarly, room number is non-prime, enrollment limit is also non-prime. So there are two FDs that involve non-prime attribute on both the sides. So this relation is not in 3NF. Okay, now अब question arise होता है how you will transform this relation into a 3NF relation. So the answer to the question is very simple. Whenever you do normalization, just remove those function dependencies that are not satisfying, or that are working against to satisfy that condition. So now you know that these two FDs are actually responsible for the problem. That's why this relation is not in 3NF. So what you can do, you can separate these set of FDs. Okay, so separate करने के लिए you will do decomposition, and what you can do now, you can decompose this relation into following two tables. So let me name the table course underscore let's say room. You can give some better name also. So here you will have attributes professor and course and room number. Okay, so this will be one table, and you can have another table. Let's say course underscore, let's say enrollment, और you can say that course underscore room. ये थोड़ा सा नाम बेटर लग रहा है मुझे. And you can have room number there, room capacity, room underscore capacity, comma, enrollment limit attribute. Okay, so now you can see that the common attribute is working as a key here, because it room number functionally determines both of these attributes. So this attribute is working as a key in this relation, and here this is the key. And you can clearly tell that this relation, this set of relation that, or you can say that decomposition that we have made is lossless. Why? The common attribute is working in at least working as a key in one relation. ठीक है, एक रिलेशन में एटलीस्ट काम करना चाहिए वो कॉमन एट्रीब्यूट की के तौर पर. देन वी से दैट दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस. नाउ अब क्वेश्चन राइज होता है, इज दिस डिकम्पोजिशन हैव गिवन अस ए सेट ऑफ रिलेशंस दैट आर इन 3NF और नॉट. अगर ये 3NF में है देन आवर पर्पज इज अचीव्ड, अदरवाइज वी हैव टू डू फर्दर डिकम्पोजिशन. So now you can see that professor course determines room number. So there is only one function dependency here. Professor course determines room number. है ना? This function dependency is there. So now this attribute is the key. So these two becomes prime attributes. This is non-prime attribute. So now there is only one prime attribute. So now there is no chance of transitive dependency. Now of course you should remember that your decomposition may transform your relation into, if you are not doing decomposition properly and wisely, your relation may not be in second form. So since you have a composite key, so you should also take care of that कि कहीं partial dependency introduce तो नहीं हो गई है. But in this case there is no issue. Okay, but you have to be careful. And then course underscore room में you can see that room number is the primary key, and these are the non-prime attribute, and room capacity does not functionally determines enrollment limit. We are assuming that. Okay, if अगर ऐसा हो जाएगा कि रूम कैपेसिटी एनरोलमेंट लिमिट को डिटरमाइन कर रही हो, सपोज दैट, देन आपका रिलेशन फिर से 3NF में नहीं होगा ये वाला, तो इसको फर्दर आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा. बट इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग दैट रूम कैपेसिटी डज नॉट डिटरमाइंस एनरोलमेंट लिमिट. Okay, that's why now both of these two relations are in 3NF. Okay, so this is how we can transform a relation into a 3NF relation, and now all the anomalies will be removed.
जो हम एनोमलीज की बात करते थे, all the anomalies will be removed, and now your relation is of a standard that can be implemented in a database. Okay, so if when we will say that our database is in 3NF, when all the relations that your database have are in 3NF, then we say that our database is in third normal form. So most of the time when you will do normalization, you will do normalization up to 3NF. Okay, now let me take one more example. एक example जैसे आप अभी we have already seen this table, instructor underscore department, where we have ID, name, एक मिनट, यहाँ मैं salary, let me write salary here, salary, then department name, comma building, comma budget. Sorry, what happened? Restore files, some error occurred actually, sorry for that. Okay, we lost whatever I have written. No issue. Let me write again. So we have a relation instructor underscore department, where we have attributes ID, name, salary, then building, sorry, department name I have forgot to write, department name, then building, budget. Okay, let me save it so that we will not lose it. So now again I am assuming that ID functionally determines all those attributes. What I want to say is that now आपको याद होगा previous in the previous example we have assumed that instructor may be belonging to more than one department. So now I am not following that assumption. I am just assuming that instructor have exactly one department. Okay, so now you know that since instructor is having only one department, so you can uniquely tell which instructor belong to which department. So that means ID और department name के बीच 1-to-1 mapping है. That means ID determines sorry 1-to-1 mapping नहीं है, many to one है. Many instructors belongs to one department, but instructor is having maximum one department. So ID will functionally determine department name. ठीक है. So now in this relation ID becomes the key. In this relation with this example, ID becomes the key because ID determines name, salary, also department name, and department name को determine करे तो obviously it will also determine building and budget. ठीक है. So now what function dependencies you have? All these function dependencies. That means ID is the so ID is the key. So ID is determining all the attributes. Okay, so I'm just taking one function dependency, knowing I'm not writing all those function dependencies that are having ID as in the left side. I'm just using one, department name, है ना? And now you also know that department name functionally determines building. एंड ऑल्सो अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम functionally determine budget, that is also there this FD. So now you can clearly see that there is a transitive FD. कैसे है? ID डिपार्टमेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा है एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग को डिटरमाइन कर रहा है. सो दैट मीन्स ID डिटरमाइंस बिल्डिंग. सो दिस इज a transitive FD. So that means this relation is not in 3NF.
So that's why since this relation was not in 3NF, that's why all the problems were there जो मैंने आपको explain किया हुआ था, that insertion anomaly, deletion anomaly, updation anomaly and redundancy, all the problems were there because this relation was not in 3NF. Okay, so now what we need to do, one more thing, दूसरे एंगल से भी हम देख लेते हैं. आपको मालूम होगा आईडी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बेस पर बात करते हैं हम, आईडी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, only one, this is the only one attribute which is prime and rest attributes are non-prime. And now you consider department name and building are two non-prime attributes and department name is functionally determining building. So this is the FD that is being held between two non-prime attributes. Similarly this is also FD that is being held between two non-prime attributes. So obviously this relation is not in 3NF. Now obviously to make this relation in 3NF, what we will do, we will do a decomposition. So decomposition में हम क्या करेंगे, those FDs that are creating problem for us, we will remove them and put them in a separate relation. Okay, so actually this FD can be combined, so that's why since both the FDs having same left hand side, so we will put all these attributes in a separate relation. And now we will decompose this relation into following two relations. Let's say one relation is instructor, okay, and second will be department. Okay, so instructor में you can have ID. So ID जिनको डिटरमाइन कर रहा है उनको आप यहाँ रख दीजिए, जिनको डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन नहीं कर रहा हो वो एट्रीब्यूट्स. सो ID नेम एंड सैलरी आपने यहाँ रख दिए एंड यहाँ आ गया डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि यही जो सेट ऑफ एफडीज हैं जो प्रॉब्लम कर रही थी आपके साथ, बिल्डिंग, बजट. ओके, नाउ आपको मालूम है कि वी नीड टू मेक दिस रिलेशन और दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन. सो इन ऑर्डर टू मेक इट लॉसलेस, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक डिपार्टमेंट नेम कॉमन. ओके, सो सिंस डिपार्टमेंट नेम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, सो इट विल बी की हियर, एंड आईडी इन सबको डिटरमाइन कर रहा है, सो दिस इज द की. सो नाउ यू कैन चेक नाउ दैट दिस रिलेशन इज इन 3NF. ओके, दिस रिलेशन इज इन 3NF. सो कैसे, सो 3NF क्या कहता है कि जितने भी एफडीज हो वो अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की होनी चाहिए, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो या की हो, और यू कैन से दैट देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और देयर शुड बी नो फंक्शन डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. तो आप देखेंगे नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम में आपस में एक दूसरे को डिटरमाइन नहीं करते हैं. ओके, सो देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. सिमिलरली बिल्डिंग बजट को डिटरमाइन नहीं करता है, सो देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. सो दिस रिलेशन इज इन 3NF. आप चाहें तो एफडीज लिख करके भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ओके, now let's see one more higher normal form that is called BCNF. So this normal form is called Boyce Codd normal form. So द नॉर्मल फॉर्म का नाम जो है ना, इन दो ऑथर्स हैं जिन्होंने इनको डिटेक्ट किया था, और दे हैव जस्ट आइडेंटिफाई दिस एफडी फर्स्ट, उनके नाम पर ही है. बॉयस कॉड आपके वही है, फादर ऑफ आर्ड्यूमस. ओके, सो नाउ व्हाट दिस नॉर्मल फॉर्म सेज, सो अगेन ए रिलेशन इज सेड टू बी इन BCNF. ए रिलेशन is said to be in BCNF if only if all the FDs, ठीक है. सो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल लिखना इम्पोर्टेंट है. हालांकि मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि हम केवल ट्रिवियल एफडीज, नॉन ट्रिवियल एफडीज की बात करेंगे. व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट एनी एफडी इन नॉर्मलाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली नॉन ट्रिवियल एफडी.
ओके, ट्रिवियल एफडीज के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली, हालांकि डेफिनेशन जब आप देते हैं, यू हैव सीन दैट सम डेफिनेशन इन बुक दे हैव टॉक्ड अबाउट ट्रिवियल एफडीज फॉर द सेक ऑफ जस्ट कंप्लीटनेस। ओके, बिकॉज बाकी नॉर्मल नॉन ट्रिवियल एफडीज को हम अपने कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, वो हमारे कोई मतलब के नहीं है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नॉन ट्रिवियल एफडी, सॉरी ट्रिवियल को हम कंसिडर नहीं करते हैं। So a relation is said to be in BCNF if and only if all the FDs of form, all the FDs are of the form alpha determines beta, where alpha is the key. ओके, सो नाउ आपकी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म थी ये भी कहती है कि आपकी जो एफडी है वो अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की होनी चाहिए। एक और डेफिनेशन अल्टरनेट है, वो अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की होनी चाहिए, जहां पे अल्फा या तो की हो या फिर बीटा जो है प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक अल्टरनेट डेफिनेशन और है कि जितनी भी एफडीज होंगी वो अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की होंगी, वेयर अल्फा इज द की। अगर अल्फा की नहीं है तो बीटा क्या होगा, एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा। सो जनरली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने की कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो वो ऑब्वियसली की का पार्ट होता है। ओके, सो जनरली क्या होता है कि आपके जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसमें एफडी मिलेगी आपको, तो वो अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की एफडी होगी। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो अल्फा की होगा, अल्फा इज ए की, और बीटा इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। और बेटर तरीके से कहे तो कहेंगे कि दोनों अल्फा और बीटा जो है, बोथ अल्फा एंड बीटा आर द सबसेट ऑफ कीज एनी की। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्कशन में मतलब ये है कि आपका या तो अल्फा बीटा अगर एफडी है तो अल्फा की सुपर की होगा, देयर इज नो इशू। अगर अल्फा सुपर की नहीं है, दैट मीन्स की नहीं है, देन अल्फा और बीटा दोनों के दोनों प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, या उनके सेट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे, की के सबसेट्स होंगे दोनों साइड में। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलाउ करती है। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी लेस रिस्ट्रिक्ट है। बीसीएनएफ एकदम कंप्लीटली स्ट्रिक्ट है। बीसीएनएफ क्या कहती है, जितनी भी एफडीज होंगी, ऑल एफडीज विल बी ऑफ दिस फॉर्म वेयर अल्फा विल बी द की। ठीक है, सो बीसीएनएफ विल अलाउ ओनली दोज एफडीज वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज द की ओनली। इस टाइप की भी एफडी अलाउ नहीं करता है। ओके, सो 3NF और BCNF में इतना ही डिफरेंस है। BCNF ये वाली कंडीशन को खत्म कर देता है, वो इट डज नॉट अलाउ दिस कंडीशन, जो कि 3NF अलाउ करती है। सो BCNF इज मोर स्ट्रिक्टर नॉर्मल फॉर्म देन 3NF। नाउ इस स्ट्रिक्टनेस की वजह से समटाइम्स सम प्रॉब्लम अराइज होती है। नाउ ज्यादातर केस में यू विल सी दैट योर रिलेशन इज इन 3NF, देन इट ऑल्सो ऑटोमेटिकली कम्स इन BCNF लाइक दैट। ये जो दोनों रिलेशन है, दीज टू रिलेशंस, ये दीज रिलेशंस जो हमने डिकम्पोजिशन से बनाए थे, दे आर इन BCNF। कैसे, लेट मी शो यू। लेट्स लिस्ट द सेट ऑफ एफडीज दैट दिस रिलेशन हैविंग। इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट है आपके, तो इंस्ट्रक्टर में एफडीज क्या है, सेट ऑफ एफडीज आईडी डिटरमाइंस नेम, आईडी डिटरमाइंस सैलरी, and ID determines डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं इसको FINST। ये क्या है, सेट ऑफ एफडीज ऑन इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर रिलेशन। नाउ यू कैन सी दैट जितनी भी एफडीज हैं अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की, इसे आप अल्फा बोलिए, इसे बीटा बोलिए। दिस अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। एंड नाउ यू कैन सी दैट all alpha are the key, है ना। सो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज इन BCNF, क्योंकि इसमें ऐसी ही एफडी है, अल्फा डिटरमाइन बीटा वेयर अल्फा इज द की।
आप देख सकते हैं जितने भी साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज की आ रहे हैं आपके, देयर इज नो एनी अदर काइंड ऑफ एफडी। सो दिस रिलेशन इज इन BCNF। 3NF में तो था ही, दिस रिलेशन इज ऑल्सो इन BCNF। हमने तो इसे BCNF में लाने की कोशिश नहीं की थी, बट ये अपने आप आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट, सेट ऑफ एफडीज इन डिपार्टमेंट टेबल में, DPT में लिख रहा हूँ इसका नाम। नाउ यू नो दैट हियर यू हैव सेट ऑफ एफडीज, डिपार्टमेंट नेम, functionally determined building, and department name, functionally determined budget। यही दो एफडी हैं इसमें, बाकी तो इनका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से बना के दोनों को कंबाइन करके बना सकते हो। आप लिखना चाहें तो दोनों को कंबाइंड भी लिख सकते हो। सो नाउ यू कैन सी दैट इन बोथ द साइड you have FDs alpha determine beta here and here alpha determined, let's say आप इसे गामा बोल सकते हैं अगर आप नोटेशन अलग देना चाहें तो, ठीक है। नोटेशन नहीं, अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की एफडी है आपकी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है जो कि आपकी सुपर की है इस एट्रीब्यूट के हिसाब से। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो इन 3 BCNF। ओके, सो बोथ द रिलेशंस आर इन BCNF। दैट मीन्स अगर हमारे डेटाबेस में यही दो टेबल हैं तो हमारा डेटाबेस भी BCNF में है। ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल वेयर योर रिलेशन इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF। सो आपको ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट यू मे सी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। रेयर एग्जांपल होते हैं, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम में 90% से ज़्यादा भी केसेस में, 99% केसेस में ये होगा कि आपका रिलेशन BCNF में अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत रेयर केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिलेशन जो है BCNF में है या नहीं है। तो जनरली ऐसा रिलेशन जो 3NF में है BCNF में ना हो, वो कौन सा रिलेशन होता है? वो ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर दो ओवरलैपिंग की हो, की ऐसी हो जिनमें आपस में कॉमन हो। दैट मीन्स यू हैव टू कैंडिडेट कीज दैट हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम। Okay, so I'm just building a relation of that with that assumption. So let's say एक टेबल में बना रहा हूँ स्टूडेंट, where let's say we have a table like student number, and I am taking this example from your book by Bipin Desai. Student number and let's say name, and let's say grade. Okay, so now what I am assuming here, okay, one more attribute I am taking, course and grade. Okay, now I'm assuming for the time being that name is also unique. There is no repetition than name in name. Name आपका जो attribute है ये unique है. So now one more thing you should, a student can take here, the assumption is that a student can take multiple, sorry यहाँ लगेगा multiple courses. Here I am assuming that a student can take multiple courses and name is unique. ये एक assumption मैं मान के चल रहा हूँ, हालांकि this is not a very practical assumption. You know that name is always not unique, but let's assume sometimes it may be unique. Now what will be the key in this case? नाउ अगर आपको किसी स्टूडेंट के कोर्स में ग्रेड पता करने हैं, सो स्टूडेंट और नेम एक दूसरे को फंक्शनली डिटरमाइन करेंगे पहले, क्योंकि स्टूडेंट और नेम यूनिक है। सो चूंकि एक स्टूडेंट का रोल आपको नंबर पता है, सो स्टूडेंट नंबर मीन्स रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आप कहना चाहें। सो स्टूडेंट नंबर विल फंक्शनली डिटरमाइन नेम एंड नेम विल ऑल्सो फंक्शनली डिटरमाइन स्टूडेंट नंबर।
नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में मैपिंग कैसी है, 1 to 1। व्हाट आई एम सेइंग, स्टूडेंट नंबर इज यूनिक और नेम भी यूनिक है, तो एक स्टूडेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही नाम होगा, बिकॉज नेम इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। सिमिलरली एक स्टूडेंट को एक ही स्टूडेंट नंबर मिल रहा है, रोल नंबर मिल रहा है। सो दिस इज द एफडीज दैट इज बीइंग देयर, क्योंकि 1 to 1 मैपिंग है दोनों के बीच में। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, नाउ स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्सेज, ये मैंने कहा है, ए स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्सेज और कोर्स में एक ही ग्रेड मिलता है, दैट यू नो। ओके, सो जब स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है तो स्टूडेंट से कोर्स के बीच की फंक्शन डिपेंडेंसी कैसी होगी, बताओ। एक स्टूडेंट कई सारे कोर्स ले सकता है, सो इधर से भी मैनी, और कोर्स में एक कोर्स में कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, सो दैट मीन्स देयर इज ए मैनी टू मैनी एफडी बिटवीन बोथ ऑफ देम। स्टूडेंट और कोर्स के बीच में फंक्शन डिपेंडेंसी कैसी है, मैनी टू मैनी। सो स्टूडेंट नंबर से अकेले आप कोर्स नहीं बता सकते, बिकॉज एक स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्स लिए होंगे, ही और सी माइट हैव टेकन 5 कोर्सेज, 6 कोर्सेज, 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, कुछ स्टूडेंट ने एक ही कोर्स लिया होगा। सो इनके बीच में जो मैपिंग है मैनी टू मैनी है, सो स्टूडेंट और सिमिलरली नेम के बीच में भी मैपिंग मैनी टू मैनी हो जाएगी। ओके, नाउ सो अगर आपको ग्रेड पता करना हो किसी कोर्स में, तो ओबियसली आपको कोर्स बताना होगा, और कोर्स के साथ में स्टूडेंट का नाम बताना होगा या रोल नंबर बताना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नाउ देयर इज वन मोर एफडी और ए couple of FDs are there like that, student number comma course determines grade and स्टूडेंट नंबर, ये नहीं है, स्टूडेंट नंबर कॉमा नेम, सॉरी स्टूडेंट नंबर नहीं, कोर्स तो आपको लेना ही पड़ेगा, स्टूडेंट नंबर की जगह पर मैं नेम ले सकता हूँ, नेम कॉमा कोर्स विल डिटरमाइन ग्रेड। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट इसमें व्हाट इज द की, विच इज द की एट्रीब्यूट और विच इज द की जो आपके सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो ए की, दिस इज ऑल्सो ए की, सो बोथ आर द कैंडिडेट कीज। And so now you can see that what are the prime attributes. I have again written that stud number comma name and course, these are the prime attributes। और एक है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये प्राइम है। what about नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम है आपका ग्रेड ओनली। नाउ कैन यू टेल मी इज दिस रिलेशन इन सेकंड एनएफ, पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रिलेशन सेकंड एनएफ में है। वैसे देखने में तो लग रहा है कि स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट जो नेम स्टूडेंट को डिटरमाइन कर रहा है, या स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जो है ना नेम को डिटरमाइन कर रहा है, बट दिस इज नॉट द पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी में क्या होता है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की के किसी पार्ट पर डिपेंड करता है। सो इन दोनों में से कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, दोनों प्राइम एट्रीब्यूट हैं। सो देयर इज नो पार्शियल एफडी, सो ये रिलेशन सेकंड एनएफ में है। व्हाट अबाउट थर्ड एनएफ, इज दिस रिलेशन इज इन 3 एनएफ, आंसर इज यस, बिकॉज देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कैन यू टेल मी इज देयर एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने के लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपको चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तभी एग्जिस्ट करती है जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। बट यू नो दैट हियर ओनली देयर इज वन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एंड रेस्ट आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। सो 3 प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, सो देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो दैट मीन्स योर रिलेशन इज इन 3 NF। सो दिस रिलेशन इज द above रिलेशन is in
3NF। अब आप देख सकते हैं इसमें स्टिल प्रॉब्लम है, इस रिलेशन में एनोमली है कि नहीं है। लेट मी टेल यू। मान लीजिए देयर इज वन स्टूडेंट जिसने एक ही कोर्स लिया है, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट जिसने एक कोर्स लिया है, और वह कोर्स ऐसा है जो केवल उसी स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, सपोज दैट। देन यू नो दैट जब आप उसके स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो आपको स्टूडेंट का नंबर और नेम दोनों खो देंगे आप। और अज्यूम दैट कि एक स्टूडेंट ने कोर्स लिया है और वो कोर्स छोड़ दिया, उसने एक ही कोर्स लिया था और वो कोर्स छोड़ दिया। सो आपने कोर्स छोड़ दिया तो कोर्स का रिकॉर्ड डिलीट करोगे आप, तो कोर्स का रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद यू विल डिलीट ऑल द थिंग्स। स्टूडेंट नंबर भी डिलीट करोगे, नेम भी डिलीट करोगे, कोर्स भी डिलीट करोगे, और उसका ग्रेड है या नहीं है जो भी वो भी डिलीट करोगे। सो जैसे ही आप एक रिकॉर्ड डिलीट करते हो, व्हाट यू विल फेस, व्हाट प्रॉब्लम यू फेस, द प्रॉब्लम यू फेस इज दैट आपने उसका कोर्स डिलीट कर दिया जो कि उसने, क्योंकि उसने एक ही कोर्स लिया था। नाउ आपने स्टूडेंट का नंबर और नाम दोनों मिस कर दिया। यू हैव लॉस्ट बोथ दिस मैपिंग ऑल्सो। क्या स्टूडेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग उसका नेम क्या था, यू हैव लॉस्ट दिस। और इफ यू सी इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन एनोमली कहाँ कैसे देखने को मिलेगी आपको। सपोज दैट एक स्टूडेंट ने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया है, हिज यू हैव स्टूडेंट नंबर, you have his name, but he have not taken any course. Can you insert his record there? No, because student number और name, student number है, हो सकता है आपके पास name ना हो, या name है नंबर ना हो। ओके और अगर उसने कोर्स नहीं लिया है then is also problem। कोर्स नहीं लिया है तो आपको स्टूडेंट नंबर नेम तो अवेलेबल है, ग्रेड ओबियसली आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोर्स नहीं लिया है उसने, तो आपको मालूम है कोर्स की का पार्ट है, इसमें आप नल नहीं रख सकते। सो इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से किसी में भी आप नल नहीं रख सकते। सो कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने की कोशिश भी करेंगे आप आधी अधूरी, तो आप वो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज थ्री एट्रीब्यूट्स आर मस्ट, बिकॉज दे कैन नॉट टेक नल वैल्यूज, क्योंकि ये की हैं। सो इनमें आप नल वैल्यू नहीं रख सकते। जितने भी की एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैंडिडेट की एट्रीब्यूट्स, नॉर्मलाइजेशन में ध्यान रखना, डेटाबेस के टाइम पर तो एक ही की आपकी रह जाती है, प्राइमरी की आप जैसे बोलने लग जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द की, यू कैन नॉट पुट एनी नल वैल्यू देयर, सो दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। ओके, इफ सपोज दैट देयर इज ए स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन एनी कोर्स, आप उसका रिकॉर्ड इसमें रखना चाहेंगे, तो आपको कोर्स नहीं है तो ग्रेड नहीं होगा, तो यहाँ तो नल वैल्यू चल जाएगी ग्रेड में, बट कोर्स नहीं है, कोर्स में आपको नल वैल्यू रखना पड़ेगी, जो आप कर नहीं सकते। सिमिलरली मान लीजिए आपको स्टूडेंट का नंबर पता है, नेम अभी नहीं पता है समहाउ, सो आप नेम नहीं रखना चाहते हैं, देन स्टिल यू हैव प्रॉब्लम। नाम नहीं पता है, आप नाम में नल नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ द की। सो दैट मीन्स ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनोमलीज आर देयर। ठीक है, एंड सिमिलरली आप जो ना, एक स्टूडेंट ने मान लीजिए 5 कोर्सेस लिए हुए हैं, तो उसका स्टूडेंट के नंबर के साथ नेम आप अननेसेसरी रिपीट कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है स्टूडेंट का नंबर यूनिक है, नेम लिखने की जरूरत नहीं थी, या नेम यूनिक है, नंबर रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, देयर इज अ रिडंडेंसी। सो दैट मीन्स ऑल प्रॉब्लम्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, आप यू नो दैट योर रिलेशन इज इन 3NF, बट स्टिल ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग, कि आपकी इंसर्शन एनोमली भी है, अपडेशन एनोमली भी होगी, डिलीशन एनोमली भी है, एंड रिडंडेंसी इज ऑल्सो देयर। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सम रिडंडेंसी इज स्टिल देयर। सो नाउ व्हाट यू विल डू, आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा। सो डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर हैविंग, कौन सा एट्रीब्यूट आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, और कौन सी मैपिंग आपको एफडीज प्रॉब्लम कर रही है, ये दोनों एफडीज प्रॉब्लम कर रही हैं। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिकम्पोज दिस रिलेशन इन फॉलोइंग वे। ठीक है, एक्चुअली देर आर 2 वेज टू डिकम्पोज दिस। पहला एक काम कर सकते हैं आप कि एक रिलेशन ऐसे बनाइए जिसमें स्टूडेंट नंबर कॉलम रखिए, कोर्स रखिए, एंड ग्रेड रखिए। ठीक है, लेट्स से इसका नाम रख लीजिए कोर्स ग्रेड, इस टेबल का नाम कोर्स अंडरस्कोर ग्रेड, और दूसरी टेबल का नाम रख लीजिए स्टूडेंट
इसमें आप रख लीजिए स्टूडेंट नंबर एंड नेम। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर को की बना दीजिए, चाहे तो आप नेम को भी की बना सकते हैं, दोनों में 1-to-1 मैपिंग। और आपको मालूम है जब 1-to-1 मैपिंग होती है तो किसी भी एट्रीब्यूट को आप की बना सकते हो। सो आई एम टेकिंग स्टूडेंट नंबर एज द की, और यहाँ भाई स्टूडेंट नंबर की है। सो ये डिकम्पोजिशन आपका कैसा होगा, लॉसलेस होगा, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो किसी न किसी एटलीस्ट एक टेबल में की होना चाहिए, ये दोनों जगह की है। सो दिस इज़ वन डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। आई एम राइटिंग ए D1 एज डिकम्पोजिशन 1। एक दूसरा डिकम्पोजिशन D2 आप ऐसे कर सकते हैं। सो जैसे मैंने इसमें स्टूडेंट नंबर को कॉमन किया था, आप नेम को भी कॉमन कर सकते हैं। सो लेट मी राइट कोर्स ग्रेड। मैंने नेम ले लिया और कोर्स ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, एक जगह कोर्स की क्या थी, स्टूडेंट कोर्स थी, तो एक इसके बेस पर डिकम्पोजिशन कर सकते हो, एक डिकम्पोजिशन इसके बेस पर कर सकते हो। तो आपने इन तीनों को एक साथ रख लिया। पहले ये पहला वाला डिकम्पोजिशन मैंने इस एफडी के बेस पर किया था, दूसरा डिकम्पोजिशन इस एफडी के बेस पर कर रहा हूँ। तो नेम, कोर्स और ग्रेड, एंड जो सेकंड रिलेशन बनेगा वो स्टूडेंट होगा, ये तो सेम रहेगा। इसमें नेम और कोर्स की हो गया, सॉरी यहाँ नेम, ये दोनों कोर्स की होंगे। और यहाँ पर आप बना दीजिए नेम की का पार्ट है, नेम को ही की बना दीजिए इसमें, सॉरी नेम कॉमा स्टूडेंट नंबर। सो ये दो पॉसिबल डिकम्पोजिशन है। नाउ कैन यू क्रॉस चेक इट नो कि बोथ द रिलेशंस आर इन BCNF और नॉट। सो आप देख सकते हैं इसमें एफडीज आप देख लीजिए। यहाँ पर एफडी क्या होने वाली है, स्टूडेंट डिटरमाइंस नेम एंड नेम डिटरमाइंस, आपको ये मालूम है स्टूडेंट नंबर, सॉरी यहाँ स्टूडेंट नंबर लिखना था। ठीक है, ये दो एफडी जो हैं इस टेबल पर फॉलो हो रही हैं, और ये दोनों सेम टेबल सेम है। सो ये एफडीज का सेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एट बोथ प्लेसेस दिस एफडी इज बीइंग सो। नाउ व्हाट इज द एफडी हियर, इसमें की है ऑब्वियसली स्टूडेंट नंबर कॉमा कोर्स ग्रेड को डिटरमाइन कर रहा है। सो यही एक एफडी यहाँ होल्ड हो रही है। ठीक है, नाउ यहाँ कौन सी एफडी हो रही है, नेम कॉमा कोर्स डिटरमाइंस ग्रेड। सो आप देखेंगे ये इस टेबल में की है, सो दैट इज अल्फा। सो आप देखेंगे यू कैन सी दैट हियर दिस इज द की, है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एफडी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी की है। सो दिस रिलेशन इज इन BCNF। व्हाट अबाउट दिस, इसमें आपने की किसको माना है, नेम को। सो इसमें जो भी एफडी है उसमें लेफ्ट साइड में की है, नेम डिटरमाइन स्टूडेंट नंबर। ठीक है, हालांकि इसमें दोनों की है, यू कैन मेक इट की एज वेल ऑल्सो। ओके, सो नाउ दिस रिलेशन इज कैन ऑल्सो बी सीइंग दैट इट इज इन BCNF। सो सिमिलरली ये भी एफडी जो है आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो दैट मीन्स नाउ वी हैव बोथ द डिकम्पोजिशन इन BCNF। सो 3NF में तो होगा ही होगा, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं 3NF में। ओके, एंड आप देख सकते हैं ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस भी है। नाउ सो नाउ डिकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो वी विल एंड विद दिस डिकम्पोजिशन। नाउ जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं देन अवर व्हाट योर गोल इज दैट योर डिकम्पोजिशन शुड बी लॉसलेस, and you also want that your decomposition should be FD preserving। ठीक है, एक डिकम्पोजिशन आपका लॉसी भी होता है, यू डू नॉट वांट लॉसी। ठीक है,
एंड समटाइम सो आपका जो डिकम्पोजिशन है इट मे बी लॉसलेस एंड एफडी प्रिजर्विंग, it may be lossless but non FD preserving. We can call it FD you can say that alternate कोई standard नाम नहीं है, you can call it non FD preserving or FD non preserving. सो लॉसी एंड लॉसलेस आप समझते हैं, लेकिन एफडी प्रिजर्विंग और एफडी नॉन प्रिजर्विंग का कॉन्सेप्ट अभी आप नहीं समझते हैं. सो लेट मी टेल यू और इंट्रोड्यूस विद दिस कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट हैपेंस, वी हैव सीन दैट कि वी वांट टू गो इनटू हायर नॉर्मल फॉर्म. व्हेन वी वांट टू गो इनटू वी वांट टू मूव ए रिलेशन विच इज इन सम नॉर्मल फॉर्म and we want to move that relation into some higher normal form. What we do decomposition. ओके, सो डिकम्पोजिशन के टाइम पे मैंने अभी तक आपको बताया था कि हमारा जो मोटिव होता है वो है कि हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन चाहिए. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब आप डिकम्पोज करते हैं देन यू माइट रिटेन ऑल द एफडीज. व्हाट दैट मीन, सपोज जैसे मैंने ये रिलेशन जो था एबव रिलेशन, मैंने इसको इस तरीके से डिकम्पोज किया, सपोज दिस वे. नाउ आई वुड लाइक टू सी कि जो एफडीज ओरिजिनल रिलेशन में होल्ड हो रही थी, क्या वही एफडीज अभी भी इस रिलेशन में होल्ड हो रही हैं, डिकम्पोजिशन में होल्ड हो रही हैं. दैट मीन्स इस सेट पर जो एफडी हैं, लेट्स से इस सेट एफडीज का सेट है एफ डैश और इस एफडीज का सेट एफ डैश डबल डैश है. और जो ओरिजिनल एफडीज का जो ओरिजिनल सेट था डिकम्पोजिशन से पहले जो टेबल थी उसमें एफडीज का सेट था लेट्स से एफ होल्ड हो रहा था. नाउ व्हाट आई वांट कि जब मैं डिकम्पोजिशन करके जो रिलेशंस बनाता हूँ तो इन दोनों का एफडीज का जो यूनियन है एफ के बराबर हो, एफ डैश एंड एफ डबल डैश. दैट मीन्स इनकी सेट एफडीज का सेट और इनकी एफडीज का सेट का मैं यूनियन करूं तो मुझे ओरिजिनल जो सेट था जिस पर जो एफडीज का सेट फॉलो हो रहा था वही आपको मिल जाए. सो देन वी से दैट वी आर नॉट लूजिंग एनी एफडी. We are not losing any FD after decomposition. So जितनी ओरिजिनल रिलेशन पर FD फॉलो हो रही थी या होल्ड हो रही थी वो डिकम्पोज्ड रिलेशंस के रिलेशंस पर भी होल्ड हो रही है. दैट मीन्स वो डिकम्पोज तो हो गए हैं लेकिन उनने अपनी अपनी एफडीज प्रिजर्व कर रखी हैं. सो कोई भी एफडी ऐसी नहीं है जो लॉस्ट हो गई हो डिकम्पोजिशन के बाद में. सो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन. सो हमारा हमेशा गोल होता है कि जब भी हम डिकम्पोजिशन करें तो हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस और एफडी प्रिजर्विंग हो. नाउ क्वेश्चन रहा था मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ. सो आंसर इज दैट एफडी जो है ना एक तरीके के कंस्ट्रेंट्स हैं कंसिस्टेंसी के. सो हम नहीं चाहते हैं कि हम एफडीज को लूज करें डिकम्पोजिशन में, क्योंकि अगर हमने किसी एफडी को लूज कर दिया दैट मीन्स हमने एक कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया लूज कर दिया. और आपको मालूम है कि जब हम डेटाबेसेस बनाते हैं तो उनके मॉडिफिकेशंस को हम ट्रैक करते हैं सो दैट कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना आए. और सो फॉर दैट हम अपने डिज़ाइन को ऐसे तैयार करते हैं कि एफडी उसमें होल्ड हो जो एफडीज थी, क्योंकि एफडीज आर ऑल्सो कंसिस्टेंसी कंस्टेंट. सो अगर एफडी लॉस्ट हो गई दैट मीन्स कुछ कंस्टेंट हमारे लॉस्ट हो गए एंड हो सकता है उस कंस्टेंट की वजह से, चूँकि अब हम उसे चेक नहीं कर पाएंगे उस कंस्टेंट को डेटाबेस में डिज़ाइन में नहीं है इसलिए, तो our database may become inconsistent in some scenario. ओके, सो अगर एफडी लॉस्ट नहीं होगी तो वो डिजाइन में लॉस्ट नहीं हुई, इसका मतलब वो एफडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके डिजाइन में अवेलेबल है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी ओके रन टाइम पर. तो इससे क्या होगा, आपके डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी. सो वी डू नॉट वांट टू लूज द एफडीज ऑल्सो बिकॉज दे आर they help us to maintain consistency of our database. Okay, so it is always desirable that we should have a decomposition that is lossless and FD preserving. अगर FD लॉस्ट हो रही है, लॉसलेस है, तब भी हमारा नुकसान है, और लॉसी है तो डिकम्पोजिशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है. ठीक है, सो अवर एक्सेप्टेबल डिकम्पोजिशन इज दिस वन. नाउ what happens, जैसे मैंने कहा था कि I have already told you many times, I have told you that we generally do normalization up to 3NF. What is the purpose of saying this? Because in case of 3NF
जब आप 3NF में लेकर के एक रिलेशन को डिकम्पोज करके लेके आते हैं तो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू गेट लॉसलेस एंड एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। बट जब आप BCNF तक नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो मैनी टाइम्स आपको लॉसलेस और एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन मिल जाएगा, बट in certain cases there are some possibilities. So there is a theorem, I will not prove that theorem, I will just give you that statement that says that every decomposition in 3NF is lossless and FD preserving. So or you can say that you can always get at least one decomposition जो कि lossless and FD preserving है in case of 3NF. But in case of BCNF it is not always possible. Sometimes you may not get any. आपने कई तरीके से डिकम्पोजिशन करके देखा लेकिन एक भी डिकम्पोजिशन ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसमें सारी एफडी बच जा रही हो। लॉसलेस आपको मिल जाएगा बट देयर मे बी सम चांसेस वेयर यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी एफडी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। ओके, सो दैट्स वाई जनरली हम BCNF पर स्ट्रिक्टली जाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो ऑटोमेटिकली हमें BCNF में मिल गया है हम वहीं तक रहते हैं। और BCNF वाली ये जो सिनारियो था ना, जैसे ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था, आपको मालूम है कि इसमें जो अजम्पशन है मेरी ये वाली प्रैक्टिकली नहीं है कि ओबियसली नेम यूनिक नहीं होता है। तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स कम मिलेंगे बट ये थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस का है। सो बहुत रेयर सिनारियो में आपको BCNF तक अपने आप नॉर्मल एक्सप्लिसिटली नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली BCNF मिल जाता है। ओके, बट यू शुड फॉर द completeness I just discussed BCNF with you. Okay, so this is the normalization. Now I will suggest you to study normalization properly, and in next class we will study some inference rules. ठीक है, अभी हमने एफडीज के बारे में, एफडीज की जो थ्योरी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। वी हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन। ओके, वी विल ऑल्सो सी सम थ्योरी रिलेटेड टू फंक्शन डिपेंडेंसीज। ओके, लाइक एक एफडी से दूसरी एफडी कैसे निकल जाती है, देयर वी हैव गिवन सेट ऑफ एफडीज, देन उस पर पॉसिबल सेट ऑफ एफडीज भी आइडेंटिफाई हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। ओके, सो दैट डिस्कशन विल ऑल्सो बी हेल्पफुल एंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू डू नॉर्मलाइजेशन इन ए बेटर वे। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से एफडीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कुछ एफडीज से आप नई एफडीज पता कर पाएंगे। सो वी विल सी दोज रूल्स ओके इन नेक्स्ट क्लास।